Beta, here transportation is flow of. My sound is not clear. Wait. Here now it's clear, bacha. Okay. So here transportation is flow of substance. Flow of substance bacha means we are just go through with the blood. Blood एक क्या है connective. Blood is a connective fluid here. Okay. So firstly we are just go through with the blood because the main component of transportation here is the blood. Blood contains here formed elements and plasma. Is it clear? Guys, in a formed elements, it including RBCs, WBCs and platelets. Okay. Percentage of formed elements. Bacha, they depends on their functions and contributions of in this कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अगर कंपेयर करें WBCs एंड RBCs का, व्हेन वी गो थ्रू विद द कंपैरिजन ऑफ दिस, देन द रेशियो इज वेरी from a species to species. Means WBC, if RBCs are the 6 molecules, then WBC is only one here. Okay. Or when we compare WBCs only WBCs here, so WBC is having a many parts here, and these parts are, first of all we categorize WBCs here. Now here WBCs are categorized on the basis of presence of granules. So they are of two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes and granulocytes. Clear is that? In granulocytes, they are categorized as lymphocytes and monocytes. Lymphocytes again categorized into B lymphocytes and T lymphocytes. Guys, if lymphocytes formed in bone marrow, they are known as B lymphocytes, and lymphocytes formed in a thymus, then they are known as T lymphocytes. It is clear? Next, granulocytes. In a granulocytes, they are acidophils. They are basophils and they are neutrophils. Acidophils having acidic component, basophils having basic component, neutrophils having neutral, neither acid or nor base, or we can say stained by acid as well as base, both are workable here. Is it clear? Okay, bacha. Now the percent, if we are go through with the percentage of these, there's in a WBCs, they having different components. For example, neutrophils having 62%, basophils having 5 to 2%, acidophils having 2 to 4%, monocytes having
5 to 3%, and neutrophils, oh sorry, uh, lymphocytes having 30%. Is it clear? Next of all, guys, here plasma, we are go through with the plasma and a blood component here. So plasma is the main component here. Plasma contain varieties of substance or varieties of things here. So first of all, plasma having approx 90% water. Okay, plasma having approx 90% water and a rest of 10% other things, and these other things are different kind of proteins. These other things are different kind of components, means like food particles, waste particle, acidic substance like lactic acid. Is it clear? And when we compare plasma and a blood formed elements, so plasma separately having 55% of blood component, means in a blood 55% of a plasma and a 45% of other formed elements. Clear is that? Now bacha, in plasma, the main we go through with it, that's the plasma having blood clotting factor. Any one of you guys tell me the name of that factor which is responsible for the clotting of blood in our body? बताइए भाई, एनी वन ऑफ यू नो? हैं जी? नो, नो, नो ग्लूकोज, नो 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 नो, रॉन्ग आंसर. एनी वन ऑफ यू अगेन? हाँ, प्रोटीन्स, वेरी गुड, प्रोटीन. Which protein you know? The name of the protein? No, 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 serum, no, no, no. Blood clotting factor. हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा सही बता रहा है कौन है वो, लेकिन वो बोला बहुत धीरे है. हाँ जी, फाइब्रिनोजन. इसके अलावा थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉट इन अ बॉडी. बट अगर हम प्लाज्मा में से ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लें, मीन्स विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा नोन एज, क्या कहेंगे उसका हम? सीरम. सीरम, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर. ओके. ओके, टेल मी वन थिंग, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट. एंटी कोगुलेंट क्या होता है? एंटी कोगुलेंट पता है आपको क्या होता है? डू यू नो अबाउट एंटी कोगुलेंट? बच्चा, एंटी कोगुलेंट मीन्स हियर which is responsible or which inhibit the clotting of blood, which prevent clot in body. Means just assume that आपके चोट लगी कहीं भी और आपकी बॉडी के ऊपर ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन क्या ये ब्लड क्लॉट इनसाइड बॉडी होता है? नहीं होता. रीजन क्या है? उस फैक्टर को बोलेंगे हम एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर, दैट इज हेपेरिन. हेपेरिन, हेपेरिन इज एन एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर हेयर. क्लियर है?
नेक्स्ट कुछ और फंक्शन है इसके, वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ओके। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन फॉर्म करता है हमारी बॉडी में? लिवर। लिवर फॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल, और लिवर फॉर्म करके कोलेस्ट्रॉल को कहां सप्लाई कर देता है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड में से वो कहां आ जाता है? प्लाज्मा में। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, आरबीसीज। आरबीसीज का पूरा नाम क्या है बेटा? व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ आरबीसी हियर? ब्लड कॉर्पस्कल्स। और अनदर नेम ऑफ आरबीसीज? इरेथ्रोसाइट्स। ओके। अब इरेथ्रोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? अब ह्यूमन की अगर हम आरबीसीज की बात करते हैं, ह्यूमन में आरबीसीज क्या होंगी? ये होती है अन्यूक्लिएटेड। यंग न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल सही बात है, यंग न्यूक्लिएटेड होंगी, लेकिन मैच्योरिटी पे वो अन्यूक्लिएटेड हो जाती है। अन्यूक्लिएटेड मींस विदाउट न्यूक्लियस। बच्चे इसका रीजन है कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये सरफेस एरिया ज्यादा रखेगी अपना, ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ऑक्सीजन बाउंडिंग इस पे हाई होगी, उतने ही ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होंगे, तो न्यूक्लियस का प्लेस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्लियर हो गया? इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन, अच्छा ये न्यूक्लियर विदाउट न्यूक्लियस हो गई ह्यूमन में। हाँ, कोई एनिमल ऐसा है जिसमें ये न्यूक्लिएटेड होती है? न्यूक्लिएटेड। कैमल एंड लामा न्यूक्लिएटेड होगी। लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल कितना है? लाइफ स्पेन। वेरी गुड, 120 डेज का लाइफ स्पेन हो गया। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। They are not to be round, they are just to be like dumbbell shaped, like that. Okay, इसको बोलेंगे बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। हाँ जी। अब इसका नॉर्मल काउंट जो है, नॉर्मल काउंट, इसका जो नॉर्मल काउंट है बेटा, 4.55 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है। 4.5 हम मान सकते हैं ये इट्स द अमाउंट ऑफ फीमेल, वेट, और इट्स द अमाउंट ऑफ मेल। मेल में जो होगा, इट इज टू बी अबाउट 5 मिलियन, और फीमेल में 4.5। अब आरबीसी इसका अमाउंट बढ़ाया कैसे जा सकता है? ये रेगुलर एक्सरसाइज से। बेटा आपकी बॉडी में अगर आपको ऑक्सीजन की नीड कम है, तो आरबीसी का काउंट आपकी बॉडी में अपने आप ही कम हो जाएगा। याद रखना इस बात को। लेकिन जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, और जो लोग हाई एटीट्यूड हिमालयस रीजन पर रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, वहां पर आरबीसी उनकी बॉडी में ज्यादा होंगी। क्लियर हो गया? अब आरबीसी बनती कहाँ है, फॉर्म्ड कहाँ होती है? ये रेड बोन मैरो में। कंफर्म? बेटा रेड बोन मैरो, सही बात है आपकी, मैरो।
लेकिन ये रेड बोन मैरो में बनती है आफ्टर बर्थ, बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ दे आर फॉर्म इन लिवर एंड स्प्लिन। ठीक है। अच्छा, इसका ग्रेवयार्ड जहां पर ये मरती हैं, ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? स्प्लिन। स्प्लिन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड। क्लियर है? आरबीसीज का कलर होता है रेड। रीजन? हीमोग्लोबिन की वजह से। वेरी गुड। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है? बताइए। हीमोग्लोबिन पे बच्चा क्या होता है? आयरन पार्टिकल्स होते हैं, Fe। ठीक है। और हीमो, हीमो बना है हीमी से, हेमी से, हीमी का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। मीन्स हीमोग्लोबिन मिलकर बना है आयरन और प्रोटीन से। यहाँ पर जो एक आयरन मॉलिक्यूल होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है, तो इस पे 4 आयरन मॉलिक्यूल हैं, तो ये कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऐसे ही हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोक्सी, सॉरी सॉरी, कार्बोक्सिन, कार्बोअमाइन आएगा, कार्बोअमाइन एमी हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब बेटा इसमें हम बात करते हैं, इन तीनों में एफिनिटी किसके साथ स्ट्रांग होगी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, याद रखना। और ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी एफिनिटी को हम बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर स्ट्रोंगर देन ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रोंगर देन कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बच्चा? एनी डाउट है? कोई डाउट है यहां पर? आयरन ऑक्सीजन को कैरी करने का मतलब होता है Fe2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, तो ये मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा FeO, फेरस ऑक्साइड। और अगर मॉलिक्यूल है Fe3 पॉजिटिव, जो आयरन है Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो ये बनाएगा Fe2O3, मतलब 2 आयरन के पार्टिकल्स 3 ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो आयरन के पार्टिकल जो होते हैं वो बाइंड करेंगे ऑक्सीजन को इजीली। क्लियर हो गया? ओके बच्चा। अब हमने डब्ल्यूबीसीएस की वैसे बात तो कर ली थी, बट थोड़ा बहुत और हम एक बार कर लेते हैं डब्ल्यूबीसीएस के बारे में, फिर हम करेंगे प्लेटलेट्स की। तो डब्ल्यूबीसीएस, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसीएस हियर? वेरी गुड, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। हाँ जी। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, वेरी गुड।
they having nucleus, they having nucleus, no pigmentation. Pigment समझते हैं बच्चा? Do you know what is the meaning of pigmentation? Pigmentation, कलर, कि उसका कलर है क्या, जैसे कि आरबीसी जो हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो हैं, दे हैविंग पिगमेंटेड, हैविंग रेड ब्लड सेल्स, हैविंग रेड इन कलर, सो दे हैव पिगमेंटेड। और यहाँ पे इनका कोई कलर नहीं है, इसलिए ये नॉन पिगमेंटेड है, कोई पिगमेंट नहीं होगा यहाँ पे। अगर रेशियो आ जाए, अभी मैंने बताया था आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, क्या रेशियो होगा? रेशियो, वेरी गुड। अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। इसके अलावा लाइफ स्पैन कितना होगा इसका? 3 to 4 days। ओके, कॉर्पोस्कल्स का मीनिंग होता है बेटा सेल, लेकिन यहाँ सेल अकेला नहीं है, सेल कंपोनेंट में है, मीन सेल ऑर्गेनाइज के अलावा भी उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको, बाकी ग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स डिफाइन करके। ठीक है, बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। बेटा थ्रोम्बोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये होती क्या एक्चुअल, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? नो, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, याद रखना। डब्ल्यूबीसीज के अलावा किसी के पास न्यूक्लियस नहीं है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं? दे आर द ज्वाइंट सेल ऑफ आर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, और रेड बोन मैरो। हम कह सकते हैं ज्वाइंट सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो। क्लियर इज दैट? इनका मेन फंक्शन क्या है? दे हैविंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो मेन फंक्शन है इनका ब्लड क्लॉट का, ब्लड क्लॉटिंग का। क्लियर हो गया? और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या पे है, यहाँ क्या है? यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इज इट क्लियर?